Students, today we'll be doing chapter number 3, that is electrochemistry. Again, it is 5 marks chapter in which there is 3 marks numerical and 2 marks theory question. So, starting with electrochemistry, it is a branch of chemistry which deals with the study of production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. So basically electrochemistry, there are two types of cells in electrochemistry, electrochemical cells and electrolytic cells. So what are electrochemical cells? A cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell, which may be used for running a motor or any other electrical gadget like heater, etc. Its other name for electrochemical cell is Daniell cell or a galvanic cell. And the redox reaction that takes place in the galvanic cell is as shown. Zinc solid plus copper 2 plus aqueous give rise to zinc 2 plus aqueous plus copper solid. The two half cell reactions are cathode and anode. Again, this is 1 mark question that is generally asked. Any redox reaction will be given to you and you will be required to produce the two half cell reactions, cathode and anode. Cathode पे क्या होता है? Reduction. And what is reduction? Reduction is what? उल्टा, उसका उल्टा मतलब that is gain of electrons. And anode पे क्या होता है? Oxidation. उसका उल्टा that means your loss of electrons. तो इसमें कॉपर 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर एंड जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके प्लस हो जाएंगे तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. Another way to remember is from the redox reaction, you see these copper 2 plus is going to copper and zinc is going to zinc 2 plus. So just write the moiety species over here, copper 2 plus going to copper and zinc going to zinc 2 plus. नौ प्लस के साथ प्लस साइन आएगा जहाँ भी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. कॉपर 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और जिंक 2 प्लस राइट साइड में है तो राइट साइड में ही 2 प्लस के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में गेन हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लॉस. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. Right, so this is very important thing that you have already done in 11th class. So just reiterating that कि anode पे और cathode पे कैसे हो रहा है. This is 1 mark question that can be asked. And the overall reaction, if you see, you add both of them, तो electron cancel हो जाएगा and you will get the same reaction. So the overall reaction. Then another half mark question can be asked is how to represent this redox reaction. How to represent this cell. तो represent करने के लिए दिस इज सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन इज सॉल्ट ब्रिज. लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारा क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड आएगा एंड राइट हैंड साइड पे तुम्हारा कैथोड आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है? जिंक गोइंग टू जिंक 2 प्लस एंड राइट हैंड साइड पे कॉपर 2 प्लस गोइंग टू कॉपर. राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड जिंक गोइंग टू स्लैश मीन्स गोइंग टू जिंक 2 प्लस एंड राइट हैंड साइड पे कॉपर 2 प्लस गोइंग टू कॉपर. Now copper electrode acts as a cathode and zinc electrode acts as anode. These two half cells are connected by a metallic wire through a voltmeter and a switch externally. The electrolytes of the two half cells are connected internally through a salt bridge. Now what is a salt bridge? Now purpose of using a salt bridge, it maintains the electrical neutrality of the cell. It maintains the electrical contact between the two half cells without any physical contact. That means electron transfer होगा लेकिन solutions वही रहेंगे अपनी जगह पे. Right? Electron will get transferred but not the solution. So without any physical contact, electrical contact is being maintained. It prevents junction potential. Again junction potential because एक साइड में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे, दूसरी साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो डैट डेवलप्स अ जंक्शन पोटेंशियल. उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज एसेंशियल. दैट इज पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? डिनोटेड बाय EM प्लस अपॉन M going to M. Now electrode potential, it is a potential difference developed between the electrode and the electrolyte
एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज ई नॉट. सेम चीज़ है, डिफरेंस बस ये है कि स्टैंडर्ड में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लेंगे हम. तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल इज यूनिटी. यूनिटी मतलब 1 मोलर. जब हर एक स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलर ले लेंगे तो देन वी कैन से इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and it is denoted by E naught. Now when the switch is on, electron flows from negative to positive electrode. This everybody knows. Movement of electron is always from negative electrode to positive electrode, and the direction of the current flow is opposite to that of the electron flow, right? So current opposite direction में जाएगा. That means from positive to negative electrode. Now cell potential, it is a difference. ये cell potential अभी हमने किया electrode potential. That is for a particular electrode, एक ही electrode के लिए. Now we are going to do cell potential, but the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell. जब हम दो लेते हैं, एनोड कैथोड लेते हैं, then we take cell potential. And what are the units of all the electrode potential? All potential difference कुछ भी हो, उसका unit is always volt. It is also called EMF of the cell. किसको? सेल पोटेंशियल को. एंड EMF मालूम है ना, फिजिक्स में किया होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन दैट इज नोन एज EMF. नाउ वी हैव टू यूज नर्न्स इक्वेशन. नर्न्स इक्वेशन क्या कहता है? दैट गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल, ई नॉट सेल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड. तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.059 upon n log anode upon cathode. So by convention cathode हम हमेशा राइट पे लेते हैं, एनोड हमेशा लेफ्ट पे लेते हैं. अब इसमें एक वेरी स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन यूज टू रिमेंबर कि लेफ्ट पे क्या होगा और राइट पे क्या होगा. यू नो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो लेफ्ट एंड राइट. कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? लेफ्ट. तो एल पहले एंड राइट बाद में. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ओ या और O. तो डैट मीन्स लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा और राइट वाले पे रिडक्शन होगा. देन एनोड कैथोड में से कौन पहले आता है? ए. एनोड एंड कैथोड. डैट मीन्स एनोड लेफ्ट में रहेगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा, एंड कैथोड हमेशा राइट साइड में रहेगा और उसका रिडक्शन होगा वहाँ पर, राइट. तो ये टर्मिनोलॉजी यू विल नेवर फॉरगेट थ्रू आउट योर लाइफ, राइट. अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें, लेफ्ट राइट एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यू विल नेवर फॉरगेट. सो ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट. और अगर ई नॉट लेते हैं हम, ई नॉट सेल, तो सेम फॉर्मूला फॉर ई नॉट सेल ऑल्सो. ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, वेयर ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल इज जस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, और सिंपली सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF, एनीथिंग यू कैन से. Now coming to measurement of electrode potential, means एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर आपको मेजर करना है तो कैसे करोगे? So potential of individual half cell cannot be measured. Why it cannot be measured? तो कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए you need a reference, है ना, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये लेंथ मेजर करनी है, तो यू विल कीप द स्केल ओवर हियर 0 पॉइंट, एंड जितना भी वैल्यू आएगा स्केल का दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. तो यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर एनीथिंग. तो इसीलिए अगर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है तो उसमें एक इलेक्ट्रोड और डालना पड़ेगा जिसका वैल्यू इज ऑलवेज 0, जो रेफरेंस एज अ रेफरेंस हमने इतनी. सो बाय कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, that is called SHE, standard hydrogen electrode, or you can say normal hydrogen electrode. NHE is taken, which has 0 potential at all the temperatures, and the single electrode whose potential has to be measured is coupled along with the SHE. And if the electrode undergoes oxidation with respect to hydrogen, then the potential measured is oxidation potential, and if the electrode undergoes reduction with respect to hydrogen, then the potential measured is called reduction potential. क्लियर. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया हमने? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए लिया है क्योंकि उसका हमेशा पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज 0. तो हमें मेजर करने में आसानी होगी. वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगा वो हमारा इलेक्ट्रोड का ही होगा, बिकॉज अदर वन इज ऑलवेज 0. सो SHE के कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक डिप्ड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट. नाउ नेक्स्ट इज जो इनर्ट इलेक्ट्रोड. एज द नेम सजेस्ट, इनर्ट का मतलब क्या है? जो रिएक्ट ही नहीं करेगा.
तो इनर्ट इलेक्ट्रोड एग्जाम्पल प्लैटिनम है, गोल्ड है. These electrodes which do not participate in the reaction but provide the surface for oxidation or reduction for a reaction to occur. That means वो खाली अपना surface ही provide करेंगे but वो खुद participate नहीं करते हैं, inert हैं because they're already inert, no? Now what is the significance of standard electrode potential? Yes, now see, if E naught cell is greater than 0, this is important. That means if E naught cell is positive, then the reduced form is more stable than hydrogen gas. And if it is less than 0, that means negative है अगर E naught cell, the reduced form is less stable than hydrogen gas, right? Now, F2 gas, fluorine gas, has the highest E naught cell, that is fluorine has maximum tendency to get reduced to fluoride ion. Therefore, it is the strongest oxidizing agent and F minus is the weakest oxidizing agent. And lowest E cell lithium का होता है, that means it is the most powerful reducing agent. Now coming to our main topic, that is Nern's equation, very very important. Nern's equation, as you already know, E naught cell कब होता है? E naught cell when the concentration of all the species involved is 1 molar, no, unity. But if it is different from 1 molar, then what will you do? You know, we will use Nern's equation. तो उस केस में E cell निकलेगा. E naught cell तो पता ही होगा when the concentration 1 molar. जब 1 molar से different होगा तो हम E cell निकालेंगे and E cell निकालने के लिए we need to use this equation, Nern's equation. So basically it gives you the quantitative relationship between the concentration, E cell and E naught cell. For this particular reaction, half cell reaction, Mn plus n electron give rise to M. ये क्या है? Reduction है. तो उसके अंदर E of the electrode is equal to E naught of the electrode minus RT upon NF log M upon Mn plus. And you know pure solid का concentration 1 मान के चलते हैं, तो इसका concentration तो हम 1 मान लेंगे, right? नीचे Mn plus का रह जाएगा. So this is equal to Mn plus only, where you know R is gas constant, value is 8.314 joules per Kelvin per mole. N is number of electrons involved. Yes, तो N is number of electron lost or gained. यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. अगर ऑक्सीडेशन लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस. और अगर पूरे सेल का लेंगे तो सेल में तो एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम. F is Faraday constant, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम. एंड T शुड बी टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट इन डिग्री C. It has to be in Kelvin. Now for a redox reaction अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर पूरा सेल आएगा तुम्हारा, नॉट इलेक्ट्रोड. E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF log upon concentration of anode upon concentration of cathode, right? Now if you put the values यहाँ पर ये 2.303 आएगा नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए. R की वैल्यू डालेंगे एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री C, that means 298 Kelvin. If you put all this term come out to be 0.059. So you directly use this equation. Why to go into such much calculations? तो डायरेक्टली तो फाइनल तुम्हारा जो इक्वेशन है दैट इज E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon N log anode upon cathode. Now for Daniell cell means तुम्हारा galvanic cell, voltaic cell, Daniell cell, Leclanche cell एक ही बात है. For Daniell cell हमारा क्या होता है? जिंक एंड कॉपर यूज़ करते हैं, तो उसमें जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड, राइट? तो योर Nern's इक्वेशन फॉर Daniell cell इज दिस. एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द Daniell cell? तुम्हारा एनोड हमेशा लेफ्ट में आता है, कैथोड राइट में आता है. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल निकल का. निकल गोइंग टू निकल 2 प्लस, Ag प्लस गोइंग टू Ag. सपोज अगर ये तुम्हें दे रखा है, देन यू क्वेश्चन है कि डिवाइड इनटू 2 हाफ सेल रिएक्शन, तो दोनों को 2 हाफ सेल में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? ये लेफ्ट साइड है, यू नो लेफ्ट साइड एनोड होता है, और एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन. एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट तो तुम लिख लो निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? निकल गोइंग टू निकल 2 प्लस, और ये एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा, उसको वहाँ ले जाके जब ले जाएंगे तो होगा +2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये तुम्हारे एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई. अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag प्लस गोइंग टू Ag. तो Ag प्लस गोइंग टू Ag, अब प्लस के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, +1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है. यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 so that everything becomes 2 and number of electron get cancelled. Okay, so this is your final equation. Net cell reaction ये है.
एंड नर्स इक्वेशन इसके लिए क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन. एन की वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे. वाई 2? बिकॉज 2 इज कॉमन, 1 नहीं लेंगे, इट इज 2 बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो फॉर बोथ ऑफ देम इट शुड हैव 1 वैल्यू दैट इज 2. देन लॉग ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड पे क्या है तुम्हारा निकल 2 प्लस, तो निकल 2 प्लस एनोड पे ले लिया, अपॉन कैथोड, कैथोड में क्या है एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. नाउ हेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस प्रॉब्लम ओवर हेयर. यहाँ पर ज़रूर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर हमें इसको स्क्वायर करना है. वाई स्क्वायर? स्क्वायर इसलिए बिकॉज इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2. तो वो जो है जो 2 फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो यहाँ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली स्टूडेंट्स डू मिस्टेक ओवर हेयर और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, राइट. तो दिस पावर हैज़, जहाँ भी हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे उसको पावर में कंसिडर करना है, ठीक है. तो दिस इज योर नर्स इक्वेशन, अदरवाइज सॉल्विंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So when voltmeter reading becomes 0, it indicates that equilibrium has been attained. So उसके लिए हम नॉन्स इक्वेशन पे चलते हैं दोबारा से. यू सी नॉन्स इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ एनोड पे अपॉन कैथोड पे. ये हमने नॉर्मल गैलियम सेल लिया है, तो एनोड अपॉन कैथोड पे स्पीशीज जो भी है. सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, ई सेल विल बिकम 0. तो ई सेल जब 0 हो जाएगा तो उसमें से ई नॉट सेल इज इक्वल टू दिस मच. अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर लेंगे, राइट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड इज इक्वल टू Kc. तो इसकी जगह वी कैन राइट log Kc. तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर Kc, राइट. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट सेल. व्हेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स difficult to measure, then it is calculated from the corresponding E naught values of the cell. E naught cell is ये भी ले सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस वही आएगा 0.059 अपॉन n if you calculate entire thing, right. So what is the relationship between E cell and Gibbs energy में, Gibbs energy में डेल्टा G naught में what is the relationship, वो फॉर्मूला हमने पहले भी करा 11th में in thermodynamics. डेल्टा G naught R in for reaction is equals to minus NF E naught cell, where N is what? Number of electrons. F is Faraday constant, that is 96500 coulombs. E naught cell is standard electropotential. Delta G naught is Gibbs energy of reaction. And there is another formula for delta G जो हमने थर्मो में किया है, thermodynamics में. Delta G naught R is equals to minus 2.303 RT log K, right. यहाँ पर T temperature है, K is equilibrium constant. Now next is cell constant. What is cell constant? It is denoted by G star. G star is equals to L upon A. What is L? L is the length of the conductor and A is the area of cross section. Cell constant. And what is the SI unit? Meter upon meter square. तो per meter होगा, ठीक है. Meter inverse is the SI unit. And you have already studied in physics, no? Resistance is directly proportional to what? Resistance depends upon length of the material and area of the cross section. तो R is directly proportional to L and inversely proportional to A. In total, R is equals to rho L by A. जब ये हटाएंगे साइन प्रोपोर्शनैलिटी तो एक कांस्टेंट आएगा. दैट दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रो, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको. तो योर फॉर्मूला इज R is equals to rho L by A, where rho is resistivity. Now if you want to find out the unit of rho, तो सबकी वैल्यूज डाल दो. R की एरिया क्रॉस सेक्शन, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, एवरीथिंग कैंसिल होने के बाद दैट बिकम्स ओम मीटर. तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. नाउ अनदर टर्म वी विल बी यूजिंग इज G, दैट इज कंडक्टेंस. इट इज व्हाट? इट इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का उल्टा, राइट. तो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ G? दैट इज पर ओम, है ना, ओम इनवर्स. एंड ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी बोलते हैं. तो या तो ओम इनवर्स लिखें या सीमेंस लिखें या मो लिखें, एनीथिंग यू कैन राइट. देन यू हैव G, यू नो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. एंड व्हाट इज R? R अभी ऊपर पढ़ा हमने, L रो L बाय, तो R की जगह हम रो L बाय डालेंगे, उल्टा हो जाएगा एंड दैट बिकम्स K A बाय L. Now what is K? अब यहाँ पर न्यू टर्म आ रहा है, इसकी जगह हमने वी हैव रिटन नो K. Now what is K? K is called kappa.
और कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। सो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रो। रो होता है रेजिस्टिविटी, कप्पा होता है कंडक्टिविटी, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ के, जो रो के हैं उसके उल्टे हो जाएंगे। रो के ओम मीटर है, रो इज ओम मीटर, तो इसका यूनिट विल बी रेसिप्रोकल, दैट इज पर ओम पर मीटर, और पर ओम को क्या लिख सकते हैं, सीमेन, सीमेन पर मीटर इज द यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जनरली क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी यू कैन से। जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कप्पा। तो कप्पा क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. Actual definition is this: it may be defined as the conductance of 1 centimeter cube of ions. मतलब ये 1 centimeter cube वॉल्यूम, सपोज ये वॉल्यूम को ले लिया, इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम है, दैट मीन्स तो 1 centimeter cube वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कप्पा. It is measured by making use of conductivity cell based on the mode of conduction. Next is Ohm law. Ohm's law, everybody know Ohm's law. 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा physics में. So Ohm's law, if potential difference is V is applied between the ends of the conductor in voltage and I is the current passing through the conductor in amperes, then the resistance of the flow of current R is given by R is equals to V upon I. ठीक है? This is potential difference. So R is equals to V upon I, or you can say V is equals to I R. This is Ohm's law.